checkbook. Before we start the webinar, I would request all the participants to keep themselves on mute for the smooth functioning of the webinar. In case if you have any query regarding the session, you can write it down in the chat box. ही उड़ता रहता है, इसलिए कुन्नू ने ही मेडिसिन पिलाता है। नमक लो। हाँ। A very good morning to everyone. I'm Ritik Shri and I'm delighted. I'm Ritik Shri and I'm delighted to welcome you all to the webinar hosted by DAV RK Puram. We sincerely hope the session will be fruitful to all of us. But before we start the webinar, let us all join our hands for Gayatri Mantra and seek the divine blessings. Ma'am, is the screen visible to you? Yes, ma'am. I request Akanksha to please do not scribble on the screen. And others, please be on mute. पता नहीं मेरे को भी तो होगा या नहीं उसे मैं This pandemic has emerged as a major challenge for the parents who have been struggling to help their children adapt to the new normal for their well-being. Keeping this in mind, the theme of today's webinar is parenting challenges in the current times. Before proceeding further, I, RK Puram, would like to welcome our speaker of the day, Dr. Roma Kumar. Dr. Roma Kumar is a clinical psychologist with the experience of over 30 years in the field of mental health. She is a senior consultant at the Institute of Child Health and vice chairperson in Institute of Psychiatry and Behavioral Sciences at Sir Gangaram Hospital. She is also a senior consultant in Max Hospital and founder of Saksham Child and Adolescent Guidance Clinic. Ma'am is partner and co-founder at Emotionally, which is an online therapy counseling and coaching platform. Dr. Roma is recognized by various communities and associations for her influence and growth in the field of psychology in India. Thank you so much, ma'am, for joining us. We are really honored to have you. Good morning, Ritishri. Thank you for this lovely introduction, and good morning to everyone. Good morning, Sanjana ma'am. Yes. You know, I would like to tell all the parents that please keep yourself mute. If you really want to interact with me and talk to me, so please keep yourself on mute. If you don't do that, I'm going to lose my concentration and talking. So I just hope I'm clear on that. और हमें सबको मालूम है कि हम काफी परेशानियों से सब लोग गुजर रहे हैं, और खासकर कि पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशानियां आई हैं, खासकर कि जब बच्चों को परवरिश करने की बात आती है या ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है, तो बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी आई है इस चीज में। तो हम सब इस चीज में बहुत ही ज्यादा अनसर्टन टाइम से गुजर रहे हैं,
और जब बच्चे घर पर रहते हैं तो लगता है कि ओहो, ये तो तूफान आ गया, इनको भी संभालो, घर का काम भी करो और ऑफिस का काम भी करो, तो ये काफी परेशान हो जाते हैं हम लोग. सो आई एम हियर टुडे टू एक्सप्लेन टू यू दैट parenting has always been like this. It's just the changed time. It's just the changed view and the perception of all of us that things are like this. किसने कहा था कि परवरिश करना बहुत आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है. और हम सीखते हैं धीरे धीरे बच्चों की परवरिश करना. जब हमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम और भी चीजें सीख जाते हैं. और लगता है कि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, घर पर बैठे हैं तो बहुत शैतानी करते हैं. पहले तो मुझसे पूछा जाता था कि ये बच्चे स्क्रीन पर बहुत रहते हैं, इनको कैसे रोका जाए. और आज देखो कि हम सभी स्क्रीन पर है. आज हम लोग भी सब स्क्रीन के द्वारा ही मिल रहे हैं एक दूसरे को. सो स्क्रीन हैज बिकम द टाइम नाउ. और हमें बच्चों को कैसे स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रखना है वो सीखना जरूरी है. हम स्क्रीन बिल्कुल हटा नहीं सकते उनके लिए, लेकिन स्क्रीन देना भी जरूरी है और उसकी थोड़ी सी दायरे बनाने बहुत जरूरी है. बाउंड्रीज क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की. और जब दायरे क्रिएट करेंगे तभी हम बहुत सारी और चीजें बच्चों के लिए कर सकेंगे. पेरेंटिंग लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो हम एकदम से परेशान हो गए हैं, एकदम से ऐसे हमें लगने लग गया है कि घर में बैठे बच्चे हैं. क्योंकि हमें डर है, हमें अनसर्टेनिटी है और हमें लगता है कि हम पता नहीं कब तक घर में बैठेंगे, कब स्कूल खुलेंगे. और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया 2 गज की दूरी रखनी है, खेलना नहीं है, ज्यादा नहीं लोगों से मिलना है. लेकिन हाल ही में मैं देख रही हूँ कि सब लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारी परेशानियां आने लग गई हैं. कोविड की महामारी वापस आ गई है और हमें और भी सावधानी रखनी है और खास करके घरों में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है. हमें ऐसे लगता है कि बच्चों पे भी बहुत सारे फियर्स आ गए हैं, एंजाइटीज आ गई हैं. खास करके आजकल जब मैं अपनी प्रैक्टिस देखती हूँ तो बच्चे बहुत ज्यादा खौफ में रहते हैं या बहुत गुस्से में रहते हैं. माँ बाप कहते हैं कि कहना नहीं मानते हैं. तो हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उनकी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है. मतलब हमें उन्हें समझना जरूरी है, हमें उनकी बात सुननी जरूरी है. हर समय हमें नहीं बात करनी है, हमें बच्चों की बात सुननी जरूरी है. वी नीड टू बी गुड लिसनर्स. हमें ये कहना है कि आई कैन सी दैट यू आर अपसेट बिकॉज there is, you're not allowed to meet your friends, you're not allowed to do so many things, you're not allowed to go outside. I can see that you're feeling very upset. But there are many ways to meet up with children. When we can have classes online, we can also meet up with other children. And if we have to meet up, my peer group, I have to be very far away from each other. So I can see children playing in the playground also, but दूरी से खेलनी जरूरी है. आप पास पास नहीं रह सकते हैं. हमें अपने दोस्त हैं या अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज है, हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ भी हमें अपनी बातचीत जारी रखनी है. इसीलिए एज पेरेंट्स हमें बच्चों की थोड़ी सी एंजाइटी को ध्यान में रखना है. अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर पाएंगे, हम इतने ज्यादा खौफ में नहीं रहेंगे और हम इतना ज्यादा सोचते नहीं रहेंगे, इतना वार्तालाप नहीं करेंगे फोन के ऊपर या पूछते नहीं रहेंगे क्या हो रहा है, टीवी देखते रहेंगे कितने और नंबर बढ़ गए हैं, हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहेंगे तो बच्चे भी इस चीज से परेशान हो जाते हैं. सो वी हैव टू मॉडल हाउ वी मैनेज आवर फीलिंग्स एज एडल्ट्स. हाउ डू वी मैनेज आवर फीलिंग्स? अगर हमें डर लग रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, तो हम उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं वही बच्चे सीखते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को एप करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं. तो हमें सबसे पहले बच्चों के लिए क्या करना है, हेल्दी रूटीन बनाने की जरूरत है. मतलब एक दिन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. पिछले 1 साल में हमें मालूम नहीं कहाँ साल चला गया. जब पिछली मार्च और फरवरी मार्च की बात थी तो हमें लगा था बस थोड़े ही दिन की बात है और ये चला जाएगा.
और वो थोड़े दिन अब और बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा अपने अंदर रेजिलियंस क्रिएट करने की जरूरत है। हमने अपने अंदर बाउंस बैक करने की वो चीज क्रिएट करनी है। इसीलिए जरूरी है बच्चों का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह तैयार होते थे, नाश्ता करते थे, बैग पकड़ते थे, बस में जाते थे या किसी भी व्हीकल से जाते थे, स्कूल पहुंचते थे, एक रूटीन बना हुआ था बच्चे का। तो वो रूटीन घर में भी बनना बहुत जरूरी है। अगर वो रूटीन हम नहीं बनाते हैं घर के अंदर, तो हमारा जो व्यवहार है या हमारी जो सोच है वो बहुत बिखरी हुई रहेगी। So it is important to have our wake up routines कि हम कब सोते हैं, कब जगते हैं। अब ये नहीं कि हमारी तो छुट्टियां ही चल रही हैं, अब तो हम रात के 12 बजे 2 बजे सोए और सुबह 11-12 बजे उठे। तो हमने क्या किया? अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ इंटरफियर किया। उस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण फिर हम पूरे दिन लेजी ही रहेंगे और हमें अपनी जो बाकी चीजें करनी है जिसमें हमें मजा आता है वो करने का समय नहीं मिलेगा। केवल स्क्रीन से मजा लेना नहीं है, बाकी और चीजों से भी तो मजा लेना है। इसीलिए वेक अप रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठकर नहाना धोना और नए कपड़े पहनना वो जरूरी है। अपना नाश्ता खाना या कोई भी और एक्टिविटी करना सुबह जरूरी है, या क्लास जो चलती है वो जरूरी है। बहुत बारी पेरेंट्स आके ये कहते हैं, मुश्किल से बच्चे उठते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं और स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और वही नाश्ता कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को ये पूछती हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है कि बाकी बच्चे आपको देखें कि आप नाश्ता कर रहे हैं? आप अपना एक रूटीन फॉलो करेंगे तब स्क्रीन पर आए। स्क्रीन को सोचिए ये स्कूल है, तभी हम लोग बहुत सारी और चीजें कर पाएंगे। और डिसिप्लिन रूटीन रहती है तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से डिसिप्लिन में रहता है। साथ में पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट थोड़ी सी वर्जिश करनी जरूरी है। वर्जिश का मतलब ये नहीं है कि हमें जिम जाना है, नहीं, हमें घर पर ही बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। हम सब आजकल नए घड़ियों में अपने स्टेप्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर घर में बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे तो बच्चों के लिए अच्छा है। वो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, थोड़ा सा सोशल टाइम हो जाता है, घर में सबसे बातचीत करने का, थोड़ा सा घर में मदद करने का समय मिल जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ये कहते हैं कि हमने तो नेटफ्लिक्स का सब कुछ ही देख लिया है, सारी चीजें देखने लग गए हैं, और हमारे बच्चे भी उसी चीज को कर रहे हैं। ये समय हमें थोड़ा सा और केयरफुली उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इस तरह की आदत पड़ गई, एक हैबिट क्रिएट हो गई कि हर समय हम स्क्रीन पर ही एक एंटरटेनमेंट रखते रहेंगे, तो हमारे बच्चे फिर जब रूटीन बनेगी या एक डिसिप्लिन क्रिएट होना है या पढ़ाई करनी है तो हम उसमें नहीं बैठ पाएंगे, हमारा ध्यान उसमें नहीं टिकेगा। फैमिली टाइम बहुत जरूरी है, फैमिली का एक रीडिंग टाइम भी जरूरी है, वो भी करिए। अक्सर और भी एक चीज पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत शैतानी करने लग गए हैं। शैतानी तो पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे शैतानी नया सीख गए हैं। हमें एज पेरेंट्स थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को कामली रखना है। अगर बच्चे ने थोड़ी सी शैतानी करी है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू डील विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ बिहेवियर व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय यू। इन्वॉल्व करिए उनको बहुत सारी चीजों में। ये नहीं है कि सारा काम माँ करती रहेगी और बच्चे और हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे। तो सबको कुछ मिलकर घर में करेंगे, तब बच्चे थोड़ा और बिहेवियर वाइज बेटर हो जाएंगे। और हमें पता है कि इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत नेगेटिव रहा है, लेकिन एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन मैं कहूंगी बहुत पॉजिटिव रहा है। जो हम भाग रहे थे फैमिली से, हम वापस सीमित हो गए हैं, हम वापस एक फैमिली यूनिट क्रिएट कर दी है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला है इसमें, बच्चे भी सीखे हैं, आप भी सीखे हैं। कंटिन्यू डूइंग दैट, इट इज अ वेरी पॉजिटिव मेथड to create some more activities within the house. This is a stressful period. हम कहते हैं जब बच्चे अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाते, बहुत और चीजें सोचने लग गए हैं बच्चे,
थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन आ गई है, हर तरह की साइट पे चले जाते हैं। तो आपको एज पेरेंट्स थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चा किस किस साइट पे जाता है। आपको थोड़ी सी चील की आंख रखनी जरूरी है। Some ways in which you can help your children manage their emotions and behavior is, you can redirect their bad behavior. According to you, if it's a bad behavior, you can redirect it. Sometimes children misbehave because they are bored. अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हम बोर हो गए हैं और they don't know any better. So let's redirect it into something which is more positive, something which is more acceptable by them. तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। मैं अक्सर कहती हूँ बहुत सारे घरों में सुबह सुबह या तो वो मेथी का पानी पिया जाता है या कोई कोई अलग अलग पानी पिए जाते, तो मेथी जो है उसको उगाई जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे उसको उगाना है। थोड़ी सी अलग तरह की काम करने घर में जरूरी है। थोड़ी क्रिएटिव प्ले का मतलब है suggest to your children how they can draw pictures of the ways your family is staying together now, how it was in the earlier times, how it is now. थोड़ा सा एक कोलाज क्रिएट करिए, उसको कमरे में हैंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसी नई नई एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे इस चीज में और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे नई एक्टिविटी करना सीख जाएंगे। थोड़ा सा उनका क्रिएटिव माइंड बाहर आने लगेगा। अपनी you have to know when to respond and when not to respond, especially when children are misbehaving or children are not listening. अक्सर माँ बाप ये कहते हैं बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, और एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन मैं कहूंगी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आपका कहना नहीं मानेगा। ये हमारे ऊपर है, हम अपनी बात बच्चों के पास कैसे लेके जाते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, वो जरूरी है। और मैंने शुरुआत में ये नहीं कहा कि मैं अगर बोलती रहूंगी तो आप लोग सुनते ही रहेंगे। मैं चाहूंगी कि आपके सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं, और कोई ना कोई उस सवाल को आप जब पूछ लेंगे तो मैं जरूर उस सवाल का जवाब दूंगी और आपकी हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगी। किसी भी तरीके से आपको लगता है कि बच्चे की कोई बात, कोई परेशानी है जो आप हल जानना चाहते हैं, तो आई एम देयर, आई विल बी एबल टू हैंडल दैट फॉर यू। जहां तक हो सके हमें फिजिकल पनिशमेंट अवॉइड करनी है। वी शुड नॉट गेट इनटू, गुस्सा आया हमें, बच्चे ने कुछ कहा ऐसा, तो हमें गुस्सा आया तो हमारा हाथ उठ जाता है। क्यों हाथ उठेगा? बहुत पेरेंट्स कहते हैं जी इसे मारा नहीं ना मैंने, इसीलिए ये ऐसा हो गया। और हम कहते हैं आपको मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों मारना चाहिए बच्चों को? So it is not important to hit your child. Avoid physical punishment as far as possible. Do not spank your child. Do not hit your child on any other forms of physical or any corporal punishment. क्योंकि इससे बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इमेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हो जाती है। और इससे बच्चे में थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है, आप में भी गुस्सा पैदा होता है। तो गुस्से का हल ढूंढने के लिए हमें और चीजें करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहती कि गुस्सा अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा डायरेक्ट करना पड़ता है इन दिस राइट मैनर। सो जरूरी है कि आपको हाथ नहीं उठाना है बच्चे के ऊपर। आपने बच्चा घर पे है तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी है घर उसके लिए। और अगर हम बच्चे को थ्रेटन करते हैं कि तू ये नहीं करेगा, तू दूध नहीं पिएगा तो मैं ये करूंगा, तू ये नहीं करेगा तो मैं ये करूंगा, तो हमने क्या बच्चे को सिखाया है? बार्गेन करना सिखा दिया है। और बार्गेन जब बच्चा हमारे साथ करता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये देखो कैसे मेरे से ऐसी चीजें डिमांड कर रहा है। और अगर हम छोटे बच्चे को सोचे कि बहुत सारी पढ़ाई कर ले, 5-6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ले, तो हम मालूम नहीं क्या चाहते हैं अपने बच्चे से। मैंने हाल ही में देखा है 1 साल के बच्चे को क ख ग घ सिखा दिया गया है, और मैं पेरेंट को पूछती हूँ हम क्या चाहते हैं उससे, व्हाट आर वी एमिंग एट? बच्चे को समझ आ रहा है कि ये जो हम लिपि सिखा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बच्चा तो सिर्फ रट रहा है, और आपको अच्छा लग रहा है जब बच्चा उस रटी हुई चीज को बोल रहा है। हमको वो करना है जो बच्चे के एज लेवल के मुताबिक है।
हमें इस चीज में प्राइड नहीं लेनी है कि मेरा बच्चा बहुत कुछ जानता है। मेरा बच्चा मेरा ही है, हमेशा मेरा ही रहेगा, जैसा भी है जो भी है मेरा है बच्चा है, एंड वी विल ऑल बी टुगेदर। डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ योर चाइल्ड। यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हेन चिल्ड्रन गो थ्रू सो मच ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमने तो सब कुछ दिया है अपने बच्चे को, उसको डिप्रेशन कहाँ से हो गया? डिप्रेशन, अरे डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन कैसे हो सकता है हमारे बच्चे को? हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चा छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है क्योंकि उतनी समझ नहीं होती है, उतनी दूर की दिशा नहीं होती उसमें कि वो समझ पाए जो आप और मैं समझ सकते हैं। So we have to handle our children with a lot of care, with a lot of involvement. हमें लगता है बच्चे पल जाएंगे, जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना, एक कर लिया अब दूसरा भी कर लिया, पल ही जाएगा। Let's remember we have not audible. We have to really put in an effort in raising our children. इसके साथ साथ में as parents you need to take care of yourself also. You know, you need to actually be physically fit. You have to also eat healthy. You have to get exercise and you have to get enough sleep. So as parents, do not think that you can be all the time available there. Create boundaries, give responsible situations to your children so that the children can learn to take some responsibilities. जब छोटा है बच्चा तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, हम कहते हैं नहीं अभी बहुत छोटा है हम कर। जैसे ही टीनेज आती है और हम चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ अपने आप कर ले, या जब दूसरा बच्चा आया तो हमें पहले वाले के ऊपर आ जाता है ये तो बड़ा हो गया है। कहाँ से बड़ा हुआ? छोटा है वो तो अभी भी वही है। हमें लग रहा है कि बड़ा हो गया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी चीजों से आती है, बहुत बड़ी चीजों से रिस्पॉन्सिबिलिटी की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। छोटी चीज कर रही है, जैसे मम्मी की मदद कर दी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने टेबल लगाई है, टेबल में जब खाना खा लिया तो उठा के रखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कपड़े ढंग से रखने हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कपड़े धोने डालने की जगह पे डालनी, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो छोटी छोटी चीजों से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है एंड डिसीजन टेकिंग स्किल्स आती हैं। बच्चे इतने ज्यादा, आप एज अ पेरेंट कभी कभी हम ओवर इंडल्ज कर जाते हैं, इतना प्रोटेक्ट कर देते हैं कि बच्चे सीख नहीं पाते कि अपनी डिसीजन कैसे लेनी है, यू नो, कि मुझे क्या करना है। इसीलिए 8, 9, 10 साल के बच्चों को इतनी कंफ्यूजन रहती है, वो सुनते नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया कि डिसीजन कैसे ली जा सकती है। So you have to remember as a parent, we have to solve problems and we have to help children in solving problems. हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। कोविड से पहले क्या होता था कि पेरेंट्स आके कहते थे, या फादर आके क्या कहा मेरे को, बहुत सारे फादर्स ने ऐसा कहा, वो बच्चा सोता नहीं है जब तक मैं आता नहीं। तो मैंने बोला हाँ, आपकी इंटरेक्शन कम होती होगी बच्चे से, इसीलिए वो आपकी वेट करता है, अच्छी बातें वेट करता। तो बोला नहीं जी, वो वेट करता है कि गाड़ी जब आएगी तो गाड़ी में बैठ के एक चक्कर लगाया जाएगा, और वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। और ये एक ही माँ बाप नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जहाँ ये परेशानी आती है। कौन आदत देता है कि गाड़ी की सीट के ऊपर बैठ के बच्चा गाड़ी चलाए? हमने दी है वो आदत, हमने सिखाया है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। हमने ये देखना है कि बच्चे का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है और क्या बिहेवियर हमें अलाउ करना चाहिए, क्या नहीं अलाउ करना चाहिए। और बच्चे सीखते हैं, ये गलत फहमी है कि बच्चे सीखते नहीं है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो हमें कॉन्शियसली पेरेंटिंग करने की जरूरत है। हमें हर चीज को सोच समझ के करने की जरूरत है ना। कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मैं 2-4 चीजें सवालों से पहले कहूंगी। पेरेंटिंग एक रिलेशनशिप है, इट इज नॉट वन वे, एक तरफा नहीं है।
Children are their own unique people who can teach a parent also. मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी मुझे सिखाते हैं. तो दो तरफा रास्ता होता है, एक तरफा नहीं होता है. Conscious parenting means that you have to let go of your own ego. अपनी ईगो नहीं रखनी है बच्चों की परवरिश करते समय. हमें बच्चों पर व्यवहार को फोर्स नहीं करना है. हमें अपनी भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है. हम समझते नहीं है हम क्या भाषा बोल जाते हैं बच्चों के सामने. अगर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं. उनके लिए तो घर एक सेफ्टी एरिया है, उनके लिए तो सिक्योर एरिया है. और वो जब देखते हैं पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं तो दुबक के बैठ जाएंगे या रो लेंगे या चिल्लाएंगे. या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को जाके कहेंगे कि आप झगड़ा करना बंद कर दीजिए. सो चिल्ड्रन are taking on a lot of your baggage. As parents, you need to understand that you have to be careful of how you speak to your children. What are your expectations from your children? We have to teach our children how to regulate our emotions. हम बच्चे को सिखाते नहीं है अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसको कैसे रेगुलेट करना है. अगर बच्चा रो रहा है तो हम जाके उसको चुप करा देंगे. छोटा बच्चा है, चलना सीखता है, हम क्या कहते हैं, चलते चलते गिर जाता है ना. जब नया सीखता है 10 महीने का, 11 महीने का, 1 साल का बच्चा चलते चलते गिरता है तो हम क्या कहते हैं, कभी टेबल को मारा, अरे टेबल ने तेरे को गिराया. कुर्सी को मारा, कुर्सी ने गिराया तेरे को. हम ये नहीं उससे बताते कि उसको लगी है, पेन को कैसे डील करना है. कुर्सी ने नहीं गिराया, मेज ने नहीं गिराया, मैं गिरा हूं. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. इट ऑल बिगिंस फ्रॉम चाइल्डहुड. माई इमोशंस, हाउ विल आई डील विद माई इमोशंस. एंड घर के माहौल को भी बच्चा देखता है कि फीलिंग्स को वहां पर कैसे डील किया जा सकता है. मेरे फादर को कितना गुस्सा आता है, मेरी मदर को कितना गुस्सा आता है, मेरी माँ और दादी कितना झगड़ा करती है, सब बच्चा देख रहा होता है. सो वी हैव टू यूज आवर लैंग्वेज वेरी केयरफुली विद आवर चिल्ड्रन. हम जो एक बच्चे होते हैं जो बहुत खुश दिखते हैं, बहुत अव्वल नंबर लेके आते हैं, हर तरीके से बहुत अच्छे हैं, मेरे को उन बच्चों की ज्यादा चिंता रहती है. और एज पेरेंट्स मुझे पूछा जाएगा आपको इन बच्चों की क्यों चिंता रहती है, तो इतने अच्छे हैं तो बिल्कुल तंग नहीं करते. और मैं कहती हूँ इन पे इतना ज्यादा बोझ है, ये आपको खुश कर रहे, अपने आप को भी खुश कर रहे. इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनको अपने आप से, क्योंकि आप लोग भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से. सो लेट्स नॉट रेज too many expectations from our children, you know. Instead of reacting to your child, learn to respond. हमें हर चीज में उत्तेजित व्यवहार नहीं करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है. अपने दायरे बनाने हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स यूज करने हैं. पेरेंटिंग is not just about making a child happy. It doesn't mean that I have to keep my child happy all the time. Children have to learn to grow and develop through struggles. जब तक कोई challenges नहीं आएंगे लाइफ में, हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे कि जिंदगी में परेशानियों का हल कैसे ढूंढना है. अगर आप और मैं एज अडल्ट्स बच्चों का हल हमेशा ढूंढते रहेंगे तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे कि जब परेशानी आए, जब सामने एक पत्थर गिरा हो तो हमें उससे आगे कैसे जाना है, कैसे ये इवेंट आया, कैसे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे कैसे इससे जूझना है. सो अ पेरेंट हैज टू अलाउ दैट टू हैपन ऑल्सो. सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगी और मैं चाहूंगी कुछ सवाल हैं तो मुझसे पूछ लिया जाए. I think Ritikshri, you can probably make it go through in this manner so that if there's any question anybody wants to ask, I'm sure they should ask those questions. Ma'am, good morning. Hello. हाँ जी, बोलिए. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am,
जस्ट वांट टू नो कि जैसे अगर बच्चा मतलब जिद कर रहा हो, knowing fully well that he had everything, but for that particular time you can't resist him, then what to do and how to deal with it? डिपेंड करता है किस चीज की जिद है। दो चीज है, एक तो जायज जिद है, एक नाजायज जिद है। अब डिपेंड करता है, देखिए हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर की सोच अलग होती है, हर घर में कल्चर डिफरेंट होता है। तो आप किस जिद की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे वो शेयर करेंगे। बेसिकली टॉयज मैम, जैसा कि मैंने अभी आपको उसको टॉय दिया, नाउ आफ्टर 2 hour or 3 hours डाउन द टाइम मैं उसको लेके मार्केट में कहीं गया हूँ, अगेन ही नीड्स टॉय। तो फिर आप क्या, कितना बड़ा बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है मैम? 7 years। तो क्या हर समय हम टॉय ले देते हैं जब वो मार्केट जाता है? नहीं देता मैम, बट वही है, उसका अपसेट टाइम रह जाता है 2 घंटा 4 घंटा, कभी 1 दिन 2 दिन is totally upset and he recalls that you have not given me, so how to deal with it? हमें कॉन्वर्सेशन रखनी है बच्चे के साथ में, बातचीत जारी रखनी है कि अगर हम मार्केट जाएंगे तो मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, सब घर अलग है, सबकी सोच अलग है। 2 बारी महीने में छोटा टॉय आ सकता है। आपको मेरे साथ मार्केट जाना है तो बिना उसके जाना होगा। अगर आपने वहां पर बोला तो फिर मैं नहीं लेके दूंगा। आपको रोना है आप रो लो, आपको चिल्लाना है आप चिल्ला लो, वो नहीं मिलेगा। एंड बी वेरी असर्टिव। आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी फर्म इन द वे यू टॉक टू योर चाइल्ड। ठीक है, आपको पहले ये होना चाहिए कि ये क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर आप इस चीज से सहमत हैं कि टॉय नहीं देना है, मैं बुरा पेरेंट नहीं हूं अगर मैंने नहीं दिया, यू आर नॉट अ बैड पेरेंट, यू आर टीचिंग द चाइल्ड द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड इट इज नॉट। हमें भी बहुत कुछ अच्छा लगता है मार्केट जाते, क्या हम सब कुछ खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं ना। तो हमें बच्चों को भी ये सिखाना जरूरी है। तो आप डिस्टर्ब ना हो जब बच्चा ऐसी चीजें मांगता है। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। या मैम, या You have secondly to और try, एक चीज था मैम, and you have to be consistent. You have to try. You have to be consistent. ये नहीं कि आपने एक बारी किया, 2 बारी किया और तीसरी बारी क्योंकि आप शर्मिंदा हो गए तो आपने कर ही दिया। तो बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कि मुझे मम्मी पापा को किस हद तक लेके जाना है कि मेरी बात मान ली जाएगी। ठीक है, आई थिंक देयर इज अनदर क्वेश्चन। दया जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम और एक चीज था कि अगर किसी चीज का ना पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो, उसको आप उससे हटा नहीं सकते हो, सो हाउ टू डील विद इट? गिव मी एन एग्जांपल सर। एग्जांपल जैसे कि ही लव्स टॉय मींस कार लाइक एनीथिंग, कार एंड फुटबॉल। तो वो अगर बैड टाइम में भी है तो ही नीड्स दैट कार विद हिम एंड वी कांट टेक दिस अवे फ्रॉम हिम एंड इट इज नॉट फॉर टुडे, इट इज ऑलमोस्ट फॉर 3-4 years लाइक दैट। वी ट्राई टू कीप इट aside, but जब भी आँख खुलता है पापा मेरा टॉय मेरे पास ही रहेगा, it will stay with me, it will everything, so वो with him only, so how to take deal this? हमें इससे बच्चे को और एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी है। ऑलरेडी ही इज एंग्शियस बिकॉज ही वांट्स एवरीथिंग क्लोज टू हिम। डू नॉट टेक अवे हिज टॉय। particularly means car and football, these 2 things. So let them remain there. Does it disturb you? It shouldn't disturb you. It is not making you dysfunctional. Let it remain there. Let him sleep happily. We all have rituals before sleeping. And if he's happy with that car and the football with him before he's sleeping, let it be. It is not making you dysfunctional. जितना आप उसको बोलेंगे नहीं करना, वो और ज्यादा करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा ये अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल है? जी जी मैम। जी पूछिए। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी बेटा है ना, फोन देने से ही खाना खाएगा, फोन टीवी चलाने से ही खाना खाएगा, और चिल्लाते हैं और थोड़ा बहुत चिढ़ाते हैं आजकल। तो ये तो आदत तो आप हम ही ने दी है ना। आदत किसने दी है? आदत फोन किसने दिया? शायद शुरुआत हमने करी क्योंकि हमें लगा खाना खा लेगा, हमने फोन दे दिया तो उसको आदत पड़ गई है। खाना हम फोन के लिए नहीं खाते हैं। हमें बच्चे को ये सिखाना जरूरी है कि खाना मैं अपने लिए खा रहा हूँ,
मम्मी के लिए नहीं खा रहा हूँ, पापा के लिए नहीं खा रहा हूँ, फोन के लिए नहीं खा रहा हूँ, मैं अपने लिए खा रहा हूँ. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच द चाइल्ड दैट. और अगर 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन अपने आप खाएगा. फोन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको. कितना बड़ा बच्चा है? मैम 7 साल का बच्चा है. हाँ, तो आपने खाना रखना है, खाना है खाए, नहीं खाना मत खाए. आप अपने दिल पे ताला लगा के चाबी बाहर फेंक दीजिए, तभी हो सकता है, क्योंकि ये हम ही ने सिखाया है कि फोन के साथ आप खाना खा लेंगे. आपको एज अ पेरेंट शांति पड़ी है कि उसने खाना खा लिया है, लेकिन उसे खाने की तो समझ ही नहीं है. वो खाना अपने लिए खा रहा है. We have to teach him that he is enjoying the food. Let him enjoy the food without any entertainment. है ना? एंटरटेनमेंट के साथ में क्या मुंह में जा रहा है तो उसे समझ नहीं आ रही ना. ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द एंटरटेनमेंट. सो लेट फूड बी द एंटरटेनमेंट versus the phone and the activity that he's doing on the phone. Make an effort, it will happen, but break the pattern as soon as possible. I think Daksh Kumar wants to ask. Okay, ma'am. a Thank you, question. ma'am. हेलो मैम. हेलो मैम. हाँ जी, तक्ष कुमार ने पूछा है सवाल. पूछिए जी, मैं तक्ष की मदर बोल रही हूँ मैम. जी, बोलिए. मैम, पहले तो ना ये बहुत अच्छे से पढ़ लेता था, खाना भी खा लेता था. अब इसे खाना दो ना, पूरा 2 घंटे तक लेके बैठा रहता है, खाता ही नहीं है. धीरे 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 ये अभी 15-20 दिन हो गए इसको. पहले ठीक था, अभी ये 15-20 डेज से करने लगा है. कितनी बहुत ज्यादा हाइपर होता है. कुछ इसकी एज 6 ईयर्स है मैम. बहुत ज्यादा हाइपर होता है, कुछ भी चीज उठा के फेंक देता है और कुछ बात सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता. ऐसे तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं इसका नहीं मैम. इसको थोड़ा जब स्टार्टिंग में ना कुछ प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर प्रोफेसर आईसी वर्मा है ना गंगाराम में, कुछ प्रॉब्लम था. हाँ, उनसे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है. इसका ब्रेन छोटा था और फ्लूइड था, तो 3 इयर्स तक इसका चला था. बट उसके बाद बिल्कुल ठीक था, अभी तक भी ठीक था. पर अभी लास्ट 15-20 डेज से ना बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करता है. बिल्कुल पूरा दिन बैठा रहेगा, कुछ नहीं लिखेगा. रात को 10-11 बजे मैं इसको बोलती हूँ मैं बाहर निकाल दूंगी, तो 10 मिनट में सारा काम कर लेता है. हमें धमकी नहीं देनी है बच्चे को. क्या आप बाहर निकालेंगे? पहले मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना बोलिए. आप निकालेंगे अपने बच्चे को घर से बाहर? नहीं मैम. नहीं निकालेंगे ना. इसीलिए जब हम कोई टेक्निक यूज करते हैं ना, तो वही टेक्निक यूज करें जिससे बच्चे पे असर हो और पॉजिटिव हो. ये तो बहुत नेगेटिव है, बच्चा और इनसिक्योर हो जाएगा, तो ये आपको और ज्यादा तंग करेगा. बहुत प्यार से बोलते रहो, पूरा दिन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बैठता. जब से इसकी क्लासेस खत्म हुई है ऑनलाइन, तब से तो बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए बिल्कुल. तो अभी तो वापस स्कूल स्टार्ट होगा ना, फिर क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं कि लिखे बैठ के घर में? हम और तरीके यूज कर सकते हैं ना लिखने के लिए मैम. हम ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, हमें पेपर पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है. हम चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं. आपके मसालेदान होते हैं, वो एक स्टिकर्स आते हैं, उसके ऊपर कॉपी करके लिखने की जरूरत है. और मैं मान नहीं सकती कि बच्चे को अगर आपने थोड़ा डिफरेंट तरीका दिया वो लिखेगा नहीं. थोड़े डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करिए. पेरेंटिंग का मतलब ये है कि हमें बैठना पड़ेगा बच्चे के साथ में. वो 6 साल का है, वो छोटा है, उसे समय लगेगा इस सब चीज के लिए. सो डोंट गेट आफ्टर योर चाइल्ड. एंड प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप थ्रेटन ना करें बच्चे को. थ्रेटनिंग कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स. डोंट थ्रेटन योर चाइल्ड. एंड खाना, अगर 15-20 दिन से खाने में इशू आ रहा है तो बैठिए और गप लगाइए बच्चे से. कौन सी ऐसी चीज आज खाने का मन कर रहा है, एंड क्रिएट इट. जो हम लोग बैठ के बनाए, ये नहीं कि तू क्या खाएगा, आज हम सब क्या खाएंगे बताइए, चलो हम सब मिलके इस चीज को बनाते हैं और सब खाएंगे. थोड़ा सा माहौल में अंतर लाते ही बच्चा डिफरेंट हो जाएगा. अभी बच्चे में कुछ मन में ऐसी बात चल रही है जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है तक्ष जी? हाँ मैम, नहीं पहले कर लेता था, अभी काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब 15-20 दिन से. और हमेशा बिना वजह ही हाइपर हो जाता है. कोई आ रहा है जा रहा है, सबको टच करता है, मतलब मारता है. जैसे उसकी कजन सिस्टर्स साथ में. आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कहीं चल रहा है क्या? हाँ, गंगाराम में ही चल रहा था प्रोफेसर आईसी वर्मा से. नहीं, कोई और थेरेपी वगैरह भी चल रही है क्या? नहीं, कोई और थेरेपी नहीं है मैम. अच्छा, हो सकता है उसको किसी थेरेपी की जरूरत पड़े,
तो या तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें या गंगाराम में डॉक्टर आईसी वर्मा वाले डिपार्टमेंट में ही चले जाएं, वहीं आपको बता देंगे। तो हम लोग सब मिलके बच्चों की इसी तरह से मदद करते हैं, तो शायद उसको किसी और चीज की भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, आई थिंक हनिका यादव वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ जी हनिका जी। एक्चुअली मैम माय डॉटर इज 4 year old जी। जब भी मैम वो कहीं बाहर खेलने जाती है या फिर अपने ब्रदर के साथ में होती है, वो थोड़ा उसका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग है कि लीडरशिप बाहर में बच्चों के साथ में अगर खेलेगी तो बोलेगी जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही करना है। तो समटाइम्स वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि सब बच्चों को तुम जो कभी कभी किसी और बच्चे की भी सुनो। नहीं, आपको लगता है इरिटेटिंग या उसको लग रहा है इरिटेटिंग, और शी इज हैप्पी? मैम शी इज हैप्पी, लेकिन समटाइम जब बच्चे लोग इसकी बात नहीं मानते तो बोलेगी मुझे नहीं खेलना है, वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तब आप उसको घर वापस ले आइए और बोलिए, तब बोलना जरूरी है। आपको ऐसे ही नहीं इंटरप्रेट करना है। डोंट कीप ऑन फीडिंग द चाइल्ड, यू नो, व्हेन शी सेज दैट चिल्ड्रन डोंट प्ले विद मी, sit down and have a conversation with your child, talk to your child, बात करिए उससे, क्यों नहीं खेलना है आपने, ऐसा क्या किया बच्चों ने। ये नहीं है उसको बोलना है कि तू ऐसे करती है इसीलिए ये प्रॉब्लम है। डोंट फीड द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड कम आउट विद एन आंसर। ऐसा क्या हुआ जो बच्चे आपके साथ नहीं खेलना चाहते, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए जिससे बच्चे आपके साथ खेलने लग जाएं। आंसर अपने आप देगी वो, आप उसके मुंह में फीड इन नहीं करें आंसर। और खुद ने बोलती है कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो मुझे नहीं खेलना है, वो मुझे गेम अच्छा नहीं लगता है। तो आप बैठ जाइए, आप सबके साथ में तभी मिलके खेल सकते हैं जो, अगर उन्होंने पहले आपकी गेम खेली, अब आपको उनकी गेम खेलनी है। अगर आपको नहीं खेलनी है तो आप घर वापस आ जाओ, आपकी चॉइस है। पुट इट ऑन द चाइल्ड, गिव हर अ चॉइस, let her understand that I need to take a decision. I have to learn to be social. By your saying she's not going to learn all that, so you have to put in that little effort. I hope you understand, and it's a slow process. It is a slow process. Do not feed into your child too many answers. Let the child take the answer also. Let the child take the decision for himself or herself. Okay ma'am. Okay, and they will make mistakes. It's all right to make mistakes. Yes, it's fine to make mistakes. Okay. Okay ma'am, thank you so much ma'am. Yeah, I think there's Anant Kumar also with a hand up. Yes, good morning ma'am. Morning. मैम मैं अनंत की मदर हूँ। अनंत 6 years old है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग है, तो जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो अभी लास्ट पूरा हुआ तो वो अटेंड नहीं कर पाया। मैं उससे कहती थी तुम अकेले बैठ के अटेंड करो, लेकिन वो ग्रैंड पेरेंट्स सकता था तो वो जिद करके उनको मना लेता था तो अटेंड नहीं करता था क्लासेस। तो अभी तो मुझे लगता नहीं है स्कूल ओपन होंगे कुछ टाइम तक, अभी भी यही होगा ऑनलाइन। तो मैं उसको कैसे वो करूं कि वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करे। देखिए वो बहुत छोटा है, थोड़ी दिक्कतें यही वाली आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड आई थिंक you'll have to take turns on sitting with the child, because the child needs to, somebody needs to sit with the child and then the child will be able to do it. If you feel that that child will be sitting on his own or her own, she will not be able to. So that child needs supervision. It's important to sit with the child and then take it forward. Do not expect a small child to just sit on his or her own online and continue with the classes. So you'll have to put in that supervision. Okay. Yeah, it's a tough job. Yes, it's a tough job. All of us are in it together. You will not believe it that I am many days I'm babysitting for my 18-month-old grandson, and my grandson sits with me on my webinars. So maybe you see me with my grandson one day. We have to do that. We are all in it together, and we have to learn to do the hybrid model. We have to learn to do it. Yes. Okay? All the best. Yeah, I think Bhavya wants to ask the question. मम्मी आज मैं नहीं नहा रहा हूँ, आज नहीं नहा रहा। मम्मी आज नहीं नहा रहा, कल नहा लूंगा प्लीज, आज नहीं। कौन नहीं नहाना चाहता? कौन नहीं नहाना चाहता?
कौन बोल रहा है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। जी संभव्या बताइए। आप म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है। सॉरी मैम। नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। कुमार संभावी की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा बेटा 8 साल का है, वो बहुत ही फूडी है, उसको खाने में मीठा बहुत पसंद है। वो बिना मीठा के खाना नहीं खाता है और इसके लिए उसको डांट भी खानी पड़ रही है। अभी 2 रोज से मुझे फीवर है, मे बी मैं कोविड पेशेंट शायद। तो अभी घर में बहुत दिक्कत हो गई है, उसको सब लोग संभाल नहीं पा रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। 2 बच्चे हैं, छोटी बेटी भी है। अच्छा, तो आपने क्या बोला, कितनी एज है बच्चे की? सॉरी। 8 साल और 8 बेटी साल। 6 साल की है। जी। तो वो बिना मीठे के खाना नहीं खाता है मतलब, या सिर्फ मीठा खाता है? नहीं, मीठा चाहिए खाने, थोड़ा ही चाहिए, उसको चाहिए। तो और गुस्सा बहुत है। नहीं, मीठे से कोई परेशानी है घर में? अगर आपने, क्योंकि ये अक्सर हमारे देश में है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाते हैं सब लोग। हाँ हाँ, मेरे घर में भी वही है, खाने के साथ मीठा चाहिए, लेकिन उसको कोल्ड हो रखा है ना, तो उससे मीठा कोई बंद है। फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घरेलू उसमें चीज में आपको ऐसा लग रहा है कि कोल्ड है तो मीठा नहीं देना, डोंट डू दैट। इट डजंट अफेक्ट, इट डजंट अफेक्ट। आप गुड़ की चीज दे सकते हैं। हाँ, और फिर अभी तो वो घर में अकेले पड़ गया है, मम्मी नहीं है, पापा है, तो तोड़फोड़ करना, गुस्सा करना, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, तो सबको फ्रस्ट्रेशन है। हमें बिजी रखना है बच्चे को, उसको, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिवली गेनफुली ऑक्यूपाइड। मतलब दिमाग अगर प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रहेगा किसी चीज में, तो फिर बच्चा ऐसी चीज नहीं करता। अभी उसको बहुत ध्यान मिल रहा है गलत चीज करके, उसको बहुत मजा आ रहा है इन सब चीजों में, तो हमें मजे को, प्लेजर को बाकी चीजों में लेके जाना है, तो हमें इन्वॉल्व करना है बच्चे को। ठीक है, हम बहुत छोटी चीज कर सकते हैं। अभी मम्मी अंदर है, मम्मी शायद बंद है, तो मम्मी के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, सैंडविच क्रिएट करते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगी कि आपका बच्चा वो चीज नहीं करेगा। कॉग्निटिवली गेनफुली ऑक्यूपाइड, दैट इज द एक्टिविटी यू नीड टू डू। मतलब उसको दिमाग के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें करनी जरूरी है जिसमें उसकी इंटेलिजेंस यूज हो, तो ही विल बी एबल टू डू इट। एक्चुअली मैम, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी कोविड पॉजिटिव है, तो दोनों बच्चे एक रूम में बंद है। सारे घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वेरी वेरी अनसर्टेन, वेरी वेरी यू नो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। बहुत परेशान हो गए हैं बच्चे एक रूम में बंद होकर। और वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। सही बात है, बहुत मुश्किल है, थोड़े दिन की बात है, निकल जाएंगे इसमें से, सब लोग साथ में होंगे तो इसमें से निकल जाएंगे। मुश्किल है, बट वील बी एबल टू डू इट। आप बैठे बैठे बात करते रहिए, फोन पे बात कर लीजिए, स्क्रीन के द्वारा बात कर लीजिए, लेकिन बच्चे से बातचीत करते रहेंगे तो वो ऑक्यूपाइड रहेंगे। आप डांटिए मत इस बात को, क्योंकि उनकी उतनी समझ नहीं है कि ये कोविड में ये बंद क्यों हो रहे हैं। दे कैनॉट थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो आप वीडियो के द्वारा उनसे बातचीत करिए। बंद रहना आसान नहीं है, आपके और मेरे लिए भी बंद रहना आसान नहीं है, लेकिन हम अडल्ट्स हैं, हम अपने आप को थोड़ी सी मेहनत करके कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन्हें कुछ कुछ एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी जिससे कि वो कर पाए। बहुत मुश्किल है समय, थोड़ा सा मुश्किल समय है, निकल जाएगा इसमें से। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, आई एम श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट बेटर। थैंक यू मैम। Any more questions? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा बेटा 4 साल का है। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। आपका बेटा 4 साल का है, आगे बोलिए। हाँ मैम, वो ना माने इतना भी ज्यादा नहीं बोल रहा है, कम बोल रहा है। जो बोल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। हाँ,
अपने में मस्त जैसे रहता है। पढ़ाई के लिए सब कुछ बोल लेता है, जैसे राइम्स हो गया, नहीं तो कुछ मैंने पढ़ने के लिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ पढ़ लेता है। बट जो नॉर्मल बात जो करते हैं ना, वो ऐसे बोलता है वर्ड्स, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलता है। अपनी भाषा हाँ बोलता है हाँ ना? हाँ हाँ आपको हाँ बच्चे को एक मनोवैज्ञानिक को दिखाने की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी हाँ तहकीकात होने की जरूरत है, थोड़ी इवैल्यूएशन होनी जरूरी है बच्चे के लिए। उससे आपको समझ में आएगा कि बच्चे के साथ और क्या करना चाहिए। सो डोंट डिले इट, प्लीज शो द चाइल्ड टू द साइकोलॉजिस्ट। हाँ। थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ। थैंक हिमानी सिंह, आई थिंक यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, Good sir. afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my son is 6 years old, Mhm. and he's a very easy child, very obedient, and he has a lot of interest in scientific subjects and does. And I share a very good communication with him. We talk a lot, and he sits with me and he talks. He loves to talk. He's very talkative as well. Sometimes I feel that ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा, जैसे he asks lot of questions. After every 6 minutes I'll find him asking some question. Could be about anything, कोई भी चीज, कुछ भी observation, कुछ hypothetical questions, कुछ normal actual questions. लेकिन मुझे ऐसा लगता है अच्छा, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके questions का जवाब दूं if they are scientifically related. तो मैं उसको वही चीजें बताती हूँ जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। बस मुझे ये श्योर नहीं हो रहा है, या मैं थोड़ा कभी कभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है कि ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करके मैं उसको बहुत ज्यादा कंडीशन तो नहीं कर रही। आई डू नॉट वांट हिम टू बी वेरी वेरी कंडीशनड। आई वांट हिम टू बी टू एक्सप्लोर। तो उससे मुझे ये लगता है कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, ही इज ऑब्जर्वेंट, बट I want him to be more aware towards environment, to see through, to observe keenly क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, rather than just getting in the bookish knowledge or somewhat that we have explored in past so many years. So Himani, what you need to do is get him to explore more things. Do not answer all his questions. Get him to answer those questions himself. That way, his critical thinking will develop, and get him involved in maybe various other activities rather than the book, so that exploratory and experimental behaviors begin and critical thinking also develops. Yeah, ma'am. And what could those activities be? Like taking him to different places, or what? What could be those? Even sitting with a magazine with some picture made, get him to think what may be happening in that picture. It doesn't have to be that story which is written there. It can be so many other things. Get his critical thinking developed. Involve him in things. You do not need to go outside the house to involve the child. There's so much in the house that you can do yourself. What if I change this sofa from this place to this place? Imagine what will happen. Can we do that? Can we not do that? Why don't you give me your suggestions? All right. So give him ideas so that he can put in his own mind on that. Right. And as it is COVID time and this is the second wave, so I do not advise children to be taken out too much. Please be very, very cautious. We work in hospital setups. Our hospitals are again getting filled up with individuals with COVID. So just be very cautious again. Right, ma'am. Right. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Some more questions, please. Yes, please ask. नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्ते मैम, मेरे 2 बेटे हैं, एक 8 साल का, एक 12 साल का। जी मैम, छोटी छोटी बात पे 12 साल वाला जो बेटा है वो हाइपर हो जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, पता नहीं क्या है। जैसे उसको पढ़ाई के लिए बोलो तभी वो इरिटेट हो जाएगा, कुछ भी काम के लिए बोलो तो एकदम से इरिटेट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम क्योंकि सब घर में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे को पढ़ाई में ही व्यस्त रखें? हर नहीं समय मैडम, पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं मैडम, उसका क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई में रखा क्या है, तो मैं उसकी अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ कि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। हाँ, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा हम इंसिस्ट कर रहे हैं पढ़ाई वाली चीज पे, तो हमें पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट करना पड़ेगा, और शायद वो तैयार नहीं है अपने आप बैठकर पढ़ने के लिए।
So we have to be, probably हमें बैठना पड़ेगा उसके साथ पढ़ाई के समय में ताकि हम उसकी हेल्प कर पाए। और पढ़ाई में रखा क्या, अगर मुझसे कोई सवाल पूछे और कोई बच्चा मुझसे पूछे पढ़ाई में क्या सवाल रखा, पढ़ाई में रखा ही क्या है, तो मैं बोलूंगी ऐसा लगा क्या, आप बताओ क्या पढ़ाई में क्या हो सकता है। Put the question back to the child and come back to the level of the child. The child will answer. Engage in conversation with the child. बातचीत करिए उससे। एक्चुअली मैम मैं छोटे वाले के साथ बैठना पड़ता है। मैं सोचती हूँ इसको अभी ज्यादा जरूरत है, तो बड़े वाले को इतना टाइम नहीं दे पाती, शायद इसीलिए वो इरिटेट होता है। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सिबलिंग वाली जो इशू होता है, कुछ समय आप बड़े वाले के साथ में लगाएंगे, कुछ समय छोटे वाले के साथ में, और ये नहीं सोचेंगे कि 12 साल का हो गया तो बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। आप उसको, आपकी जरूरत है उसको, मानसिक रूप से आपकी जरूरत है, शारीरिक रूप से नहीं है, बड़ा है, एज में बड़ा है, मानसिक रूप से आपकी जरूरत है। तो प्लीज बी देयर फॉर योर चाइल्ड। मैम तो वो सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, सोचता है मम्मी बैठेगी तभी करूंगा, मम्मी नहीं बैठेगी तब नहीं। हम दूसरी तरीके से देखते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम दूसरे तरीके से देखते हैं। वो करना नहीं चाहता है वर्सेस कर नहीं पाता है। अगर आप बैठेंगे तो वो कर लेगा, उसको हेल्प की जरूरत है। सो जी मैम, गिव हिम हेल्प। ठीक है जी मैम। जी हिमानी, यू वांटेड टू आस्क मी अनदर क्वेश्चन? यस मैम, एक छोटी सी चीज और थी मैम। जो मेरा बेटा है, मतलब ही इज द ओनली चाइल्ड एंड ही इज वेरी पैम्पर्ड नॉट इन अ रॉन्ग वे, पैम्पर्ड इन अ वे दैट वी नेवर, हम उसको कभी वी नेवर लेट हिम डाउन और उसको लो फील कभी नहीं करने देते हैं। तो ही इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड एंड ही इज हैप्पी। लेकिन हम उसको हमेशा काफी चीजों के लिए प्रेज करते हैं और वो बड़ी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, शायद बड़े लोगों में रह के थोड़ा मैच्योर ही है अपनी साथी के बच्चों के हिसाब से। लेकिन एक चीज जो मैंने कभी कभी ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे हम किसी कंबाइंड ट्रिप पे गए, फैमिली के साथ गए, कभी गए, तो क्या होता है कि हर कोई मेरी तरह या मेरे हस्बैंड की तरह या उसके दादी बाबा की तरह बात नहीं करेगा। आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट दैट इक्वल। सो कोई रूडली बात कर सकता है, कोई ऐसे ही, सबका तरीका वो नहीं होता। सो कोई बहुत ही गलत टोन में झड़क देता है, कुछ किया उसने ना, ही इज अ चाइल्ड, तो उससे वो सडनली एकदम उसका मूड, वो ही इज अ सेंसिटिव चाइल्ड, he catches someone's by his expressions also कि ये इसको कैसा लग रहा है, तो वो एकदम से he becomes sad and जो भी वो फन कर रहा है, जो भी है, वो उसको एकदम छोड़ देता है साइड में। तो अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है, हम कहीं जा रहे हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उसको वो नहीं कर रहे हैं, किसी और ने डांट दिया एकदम से, अरे क्या कर रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल वन डे ही was watching a cartoon and he was laughing and someone was visiting us and उन्होंने बोला अरे ये कैसे हंस रहा है मेंटली चैलेंज्ड लोगों की तरह। so that was a very bad comment for a child. so but then उसको वो चीज समझ में आ गई, उसको शायद नहीं पता मेंटली चैलेंज क्या है, बट उसको मेंटल वर्ड समझ में आ गया and he was very बस वो छोड़ छाड़ के then he felt very bad about it. So how to handle this situation? Yeah. So sometimes this sensitivity and the oversensitivity is coming from us. It's how we react to situations also. So when somebody says these things, you do not have to react. When that person goes away from there, have a conversation with your child. See, everybody thinks differently. Tell him everybody sees things differently. Everybody thinks differently. So he had to say this comment does not mean you have to believe it. But we don't need to get angry with it. All right. So we need to give him that option to be able to be just hearing that comment and not react to that comment. And as a parent, I think I will want you to exercise a little bit of control over yourself and not always think and view your child from that extra sensitivity area. Window. Yeah, do not look it from there. Okay. Look at it that I have to help him deal with adverse situations. These are adverse situations. We have to learn to deal with it. I cannot shun out people. I cannot tell people that you have to think differently. I think differently, but everybody can't think in that manner. So we have to accept, we have to tell him that it is a society of inclusion. We have to accept people in how they are. We do not have to get disturbed by it. If I am getting disturbed by it, then sit down and chat with me. We will sort it out together.
Yeah, all my worry was कि मतलब to outside world he should be not, मतलब वो शायद कैसे मैनेज करेगा, अभी तो वो वैसे बहुत छोटा है. तो वो करे, छोटा है तो तभी सीखेगा. And don't keep on reading his expressions. Okay, yes. Don't Maybe I myself is very sensitive towards his reactions. I already said that to you. Yes. Said that to you. It's coming Because from this trait belongs to me, like a psychic kind of, okay, this might happen or this is happening. So kind of sometimes it goes overboard. A lot of genetic baggage comes from us adults. Yeah, I agree. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Some more questions. I had this one question here. I'm just going to read out that there's somebody who has said that my daughter is more social, always involved in playing with small kids, whole day spent with kids, and doesn't want to study in vacation. I just want to make her base, at least her base should be strong. We don't need 24/7 studies. We need only a 1 hour or 2 hours, and that 2 hours can be broken 4 times in the day. And we don't want to make studies as a big burden for the child. Let's have fun in studies with the child. So let him play, let him or her play, let her enjoy in various other activities, and you can sit with the child while the studies are going on. So one doesn't have to think in such a negative manner, but I'm sure you'll be able to do it. Any other question is there? Hello, ma'am. Very good morning. This is Pankaj Chaudhary, father of Yash Chaudhary. I am having one question. My son is very demanding, and like I do live in a joint family, and my mother is very like lean towards the kids, and they are very much into they fulfill all the requirements, all the necessities, and all the demands. In fact, so how to control that? And because of that, he is becoming very naughty day by day. पंकज जी, 2 ही चीजें बोलूंगी. बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अलग रिलेशनशिप रखनी. Don't interfere in that relationship. That's a very special relationship of grandparents and the child. Do not view the child's behavior is getting spoiled because of the grandparents. Grandparents deal with children differently. It's you parents have to deal with your child differently. So if he misbehaves, we have to talk to him in a different manner rather than making a comparison that because he gets away with all the things from my parents, he's becoming like this. Secondly, when your child is not around, have a nice conversation with your parents. When I say nice, means a healthy, nice conversation with your parents and say, we know that we are so dependent on you. You supervise the child so well. But we would want you to just help us in raising the child in these manners, not to fulfill these 2-3 demands that he's all the time doing. We'll be really happy with that. But do not make them feel that they are bad grandparents. Say it in such a manner because they have raised you. So they couldn't be bad in their thoughts. Grandparents will be different. And let your child have a nice relationship with the grandparent. Do not ever question that. That's a special relationship. Perfectly fine, ma'am. Do agree. One more thing: how far it is, how far it will be good to be rude sometime or to be angry sometime on a kid if it is very much required in that way. I do not need to be rude with my child. I just need to be firm with my child. I do not need to be angry. My body language will be such that what you need to say is, you're not listening to me, you're ignoring me, and daddy doesn't like it. I would want you to listen to me, hear me, I'm waiting for your response. And that's a firm way of saying it rather than, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, जब देखो तुम ऐसी काम करते हो. So we are attacking the child. Do not attack the child. Whenever anyone gets attacked, there's a defense coming. Like even if somebody attacks you in some manner, in whether verbal or physical, you will defend. The same way the child is learning to defend himself. So be very firm in the way you say it. It comes gradually. It will not come suddenly, Pankaj-ji. Yes, ma'am. Perfectly. Thank you so much. Yeah.
Good morning, ma'am. This is Pooja Srivastava, Anshu Sagar's mother. Ma'am, my question is not for my son. This is for my daughter, who is 14 years old. Can I ask something? Yeah, sure. You can ask for any age. ओके मैम, ये शुरू से ना एक शाई नेचर वाली बच्ची रही है, और हमेशा से जब मैं इसके स्कूल भी जाती थी, पीटीएम हो या कोई भी गैदरिंग हो, कोई भी फेट हो, कुछ भी हो, तो हमेशा मैं इसको मतलब इसको शी नोज एवरीथिंग, इसको सब कुछ पता, इतना ज्यादा एजुकेट करती है, इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और जब मैं इसकी टीचर को कभी नॉट complaining mode, but just a casual talk, मैंने जब भी इनकी टीचर से बात की, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। I think she got disconnected. All right. So Ritu, I think we'd like to just wind up in some time. Yeah, okay, sure, ma'am. Thank you so much for sparing your precious time and sharing with us the most valuable parenting tips. This will indeed help us all in dealing with our children. We would like to now express our sincere gratitude to you, and we really hope that you will continue to share your valuable tips with us. Oh. Thank you so much. Yeah. Thank you, Deepshika ma'am. In the end, we would like to express our heartfelt thanks to all the participants, that is our parents, for your active participation. Thank you so much. And I really enjoyed chatting with all of you. And I'm sure we'll get more opportunities to chat with you. And I'm available for any other questions. You can always reach me. You can ask the school and they will get you in touch with me. All the best to you. And please be safe. Take care of yourself. All the best. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.